Welcome to all of us. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Today, class 10th subject of mathematics, chapter pair of linear equations in two variables. In the last video, we have learned about solution of pair of linear equations by using a substitution method. यानी इससे पहले जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. टुडे one of the most important method, namely elimination method. It is the second method used to find the solution of the pair of linear equations. यानी आज हम दूसरी मेथड, हमारे पास कंटेंट में 10th के कंटेंट में तीन मेथड्स है. First is substitution method, second one is elimination method and third one is cross multiplication method. यानी आज हमें सीखना है कि हम कैसे elimination method को इस्तेमाल करेंगे और pair of linear equations की solution निकालेंगे. If we apply method, in other words, if we apply elimination method to the pair of linear equation and find it a solution, we come across three types of solutions. यानी अगर इस elimination method करो इस्तेमाल तो असो solution कड़ा pair of linear equation ऐसे आसान तक तीन किस्मों में solution है. इसका मतलब है अगर हम कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करेंगे, या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे इन टू वेरिएबल्स, हमें वहां पे तीन किस्मों की सॉल्यूशन आएगी. सबसे पहले वी कैन से वहां पे नो सॉल्यूशन भी आ सकता है. यानी a pair of linear equations can have no solution. Infinite many solutions. And third one, unique solution. यानी जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा, we have learned that how we can identify no solution, infinite many solutions, unique solution. Today, by using elimination method, we have to identify, we have to find no solutions, infinite many solutions and unique solutions of pair of linear equations. तो यहाँ पर मैंने जब जो ही हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वी कम अक्रॉस दीज थ्री केसेस. वहां पे हमें ये तीन केसेस मिलेंगे. कहीं पे हमें नो सॉल्यूशन आएगा, कहीं पे इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, कहीं पे यूनिक सॉल्यूशन आएंगे. if a pair of linear equations can have no solution, we can say that this pair of linear equation is inconsistent. इसका मतलब है a pair of linear equation is said to be inconsistent if it have no solution. If the pair of linear equations have many solutions, we can say they are dependent and constant. And the third one, if the pair of linear equations have unique solution, we can say that the pair of linear equation is consistent pair of linear equation. यानी यहाँ पे हमें तीन किस्म के सॉल्यूशंस के साथ constant और inconstant की definition भी आएगी. हाँ, if the pair of linear equation have no solution, we can say the pair of linear equation is inconstant. Whereas if they have many solutions, we can say they are dependent and constant. हाँ, if they have unique solution, we can say that they are constant pair of linear equation. In order to understand elimination method more clearly, we can take here one or two examples. यहाँ पे हम एक या दो examples लेंगे ताकि हमें elimination method जो है we can understand it easily. First one we take 2x plus 3y is equal to 8. 2x
plus 3y is equal to 8, and second one we take 4x plus 6y, 4x plus 6y is equal to 9. ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोड की. हाँ, in order to understand this elimination method more clearly, we can take one or two examples and find their solution certified by using the elimination method. सबसे पहले हमें क्या करना है? We code them. This is equation number first. This is equation number second. हाँ, elimination method का मतलब क्या है? पहला स्टेप जो इसका है, स्टेप नंबर फर्स्ट. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी यहां पे हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 9. This method is known as elimination method because in the pair of linear equation we have to remove or we have to eliminate one variable. This is why this method is known as elimination method. यानी यहां पे क्या करना है? हमें फर्स्ट स्टेप में हमें एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है. रिमूव वन वेरिएबल. कैसे हम रिमूव करेंगे ये हमें सीखना है. बाय इक्वेट. पहले हमें इसको इक्वेट करना है, यानी बराबर, न्यूमेरिकली बराबर बनाना है, फिर इसको रिमूव करना है. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे x को ऑब्जर्व करेंगे 2x है, यहाँ पे x को ऑब्जर्व करेंगे सेकंड इक्वेशन में 4x है, यानी हमें फर्स्ट इक्वेशन में जो x का न्यूमरल है वो 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का न्यूमरल है वो 4 है. इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, सेकंड इक्वेशन में 4 है. सो हमें क्या करना है यहाँ पे? इन दो न्यूमरल्स यानी x के कोएफिशिएंट जो 2 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, ऐसे यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को ताकि ये 4 बने. तो वी मल्टीप्लाई हियर 2 by 2, it become equal to 4. So multiply first by 2, यानी पहले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड बाय 1. आर यू गेटिंग मी? हाँ, शाबाश. तो यहां पे क्या करना है हमें? एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पहले स्टेप में क्या करना था? ट्रांसपोजिंग करनी थी. एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेना था. बट इन केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड यहां पे क्या करना है? वी हैव टू ऑब्जर्व देयर वेरिएबल्स x y, और इसके बाद इनके कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 6 है. तो हमें न्यूमेरिकली इनका वैल्यू, इनका कोएफिशिएंट जो है वो सेम बनाना है. तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 2 इट गेट 4, इट इज 4x. 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6y बनेगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा. दिस बिकम इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगेन इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4x, हाँ 12y, इट इज इक्वल टू 18. 9 नहीं, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना है. 4x, 6 1s are 6, 9 1s are 9. दिस बिकम इक्वेशन नंबर 4. यानी पहले स्टेप में हमें यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन मेथड का, हमें इक्वेट करना है. इक्वेट इन, हाँ फर्स्ट स्टेप में हमें इक्वेट करना है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट, चाहे x लेंगे या y लेंगे, इन दो में से एक को हमें क्या न्यूमेरिकली इक्वेट बनाना है, इक्वल बनाना है. जैसे कि यहां पे बना 4x. इसके बाद क्या हमें करना है? इन द स्टेप नंबर 2 वी हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट. हमें यहां पे देखना है चाहे 4 और 4 को कैसे यहां पे रिमूव करेंगे. अगर 4 को सबट्रैक्ट करेंगे 4x से, तो हाँ. सो इन द स्टेप नंबर 2 वी हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट. यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे 4x है, ये बराबर है, यहां पे ये मैंने इक्वेट किया है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड.
यानी फर्स्ट में से हम सेकंड को निकालेंगे। 4x को 4x के साथ, बीच में प्लस है, 6y को 6y के साथ, और 16 को 9 के साथ। What we get? 4 and 4 will go, 6 and 6 will go, we get here 0. In the right hand side there is 16 and minus 9, we get 7. अगर इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें, वेरिएबल्स रिमूव हो गए, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है थे वो वैनिश हो गए, और लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है। द लेफ्ट एंड राइट साइड आर नॉट इक्वल, सो concluded here, left side is not equal to right hand side. If the left side is not equal to right hand side and there is no variable in both sides, so we can say that the statement is false. If the statement is false, then the pair of linear equations have no solution. तो यहां पे हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो रिजल्ट मिला वो नो सॉल्यूशन है। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। हाँ, शाबाश। वो टेक अनदर वन। मिसाल के तौर पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन हम यहां पर लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल को जब हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई की तो वहां पर क्या मिला हमें? वी हैव टू गेट the pair of linear equation have no solution. In here we apply the first step, तो यहां पर देखेंगे x 2x है, y 2y है, इन दो में से हमें एक को चूज करना है। लेट वी चूज दिस वन। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई x बाय एनी नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू 2। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 1। व्हाट वी गेट? तो जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2x, y को 2 से, 3 को 2 से 6 बनेगा, दिस बिकम इक्वेशन नंबर थर्ड। इन द सेकंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 is 2, हाँ 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 बनेगा, 6 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 बनेगा। दिस इज 4 एंड 3। नाउ सेकंड स्टेप अप्लाई करें। अब हमें क्या करना है? इन दो को कहीं पे ऐड करना है, कहीं पे सबट्रैक्ट करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट, आर वी ऐड आर सबट्रैक्ट। तो 2 को 2 से घटाना है। अगर 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, अगर 2 को 2 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। सो व्हाट वी गेट? सबट्रैक्ट 3 and 4। इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 2x है 2x के साथ, 2y है 2y के साथ, और राइट साइड में 6 है 6 के साथ। 2 में से 2 निकालेंगे 0 मिलेगा, 2 में से 2 में निकालेंगे 0 मिलेगा, 6 में 0, सो वी गेट 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिजल्ट इज डिफरेंट। लाइक फर्स्ट में हमने देखा, लास्ट एग्जांपल में लेफ्ट साइड में वहां पे 0 था और राइट साइड में वहां पे नंबर था। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू और इट इज। इफ द बोथ साइड्स आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड जो वेरिएबल्स थे वहां पे वो वैनिश होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू आता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। If the statement is true, so the pair of linear equations have infinite many solutions. Infinite many solutions.
If the pair of linear equations have infinite many solutions, we can also say that they are dependent and constant. Inshallah, in the next videos, we will talk about more examples so we can understand this elimination method more clearly, and the concept of solution, no solution, infinite many solutions, and unique solutions. Khuda Hafiz.